This conference will now be recorded. Okay, so we will now discuss this binary search technique. Just a second, next slide. Okay, this is binary search technique. Okay, so this is an array of 10 numbers. Okay, name of array is A, and there are some requirements for binary search. Okay, first requirement is array elements must be sorted. Okay, now you have studied sorting algorithm also, which are bubble sort, selection sort, and insertion sort. Okay, so first of all, what you do, if you have an unsorted array, you will apply any one of these sorting algorithm and you will sort the array first. Okay, and then what is the second requirement? Mid element of the array should be accessed directly. Okay, and these both requirements are fulfilled in array. Okay, you can sort the elements using any of these sorting algorithms, and mid element, see, in case of array, you can calculate the address of any element in array. Okay, and with the help why this can happen with the help of contiguous property of the array, because every element is stored in sequence, so it is easy to calculate the address of every element. Hence, you can calculate the address of mid element also. So both of these requirements are fulfilled in array. Now, the principle behind binary search. See the statement. First of all, you have to compare mid element of the array with the element which you want to find. Okay. See, this array is sorted. Okay, we have already taken this array as sorted. Okay, so suppose you want to search 88 in this array. Then first of all, you will compare 88 with mid element. Okay, so mid of this array is either 4 or 5. Okay, what if they are if you declare this beginning, we will take a variable beginning which will point to 0th location, and we will take another variable end which will point to 9th location. And how will you find mid? Beginning plus end by 2. Plus end by 2. Okay, so if you add 0 plus 9 and divide it by 2, what will you get? 4.5. Okay, what if it is an int? If both are, I said both variables are integer, so what will get stored? Only 4. Okay, so it will point to 4th location. Okay, now you will compare this 88 with 55, and after comparison you will get 3 cases. Either 88 will be equal to this mid element, or 88 will be greater than this element, or it will be less than this element. Okay, so if you find that this is equal to mid element, we are lucky, and we will print its location as mid. Okay, otherwise you have to find new mid once again, and new mid depends upon whether element which you want to find is less than mid element or whether it is greater than mid element. Now see second principle. If mid element doesn't match with the element, find out new mid of the array. And this is the third case. If element is less than mid, new mid is to the left side of mid, else it will be to the right side. This is true. See, if you want to search 88, obviously it will be, if it is greater than mid element, it will be to the right side of this list, this 55 now. Okay, so half of the list behind this 55 will be discarded. Okay, 88 can never lie to right side of 55. Okay, similarly, if you want to search 22 in this array, then again, first of all, you will compare it with 55, and you will know that this 22 is less than 55. So now the list after 55 will be discarded. Okay, now 22 can never lie after this 55. Okay, so whatever is the case, whether it is less than or equal to, half of the list will be discarded. Okay, and this is the property of binary search. Okay, half of the list will be discarded every time. Hence, its complexity is very less as compared to linear search. What is complexity of binary search? Can anyone tell me? What is the complexity of binary search? Log base to n. Okay, log base to n. Okay, and why it is log base to n? Because you will see
any such kind of algorithm in which list gets half every time, such kind of algorithms have a logarithmic scale complexity. Okay, so binary search have logarithmic complexity. Now see, this was an example where we are thinking of so there are 1000 elements in this array. After one comparison, 500 numbers will be there. Then after second comparison, 250 numbers will be there. In this case, you will see the trend after every comparison, numbers are getting half. So to search element in 1000 elements, you will take maximum of 10 comparisons. Okay, after 10 comparisons, you will find that element. Okay, so complexity of binary search is log 2n, and complexity of linear search was n. Okay. See, best case of binary search is also 1 because you will find directly the mid element. Okay, and average case and worst case of binary search is both log 2n. Average case and worst case complexity of binary search is logarithmic, whereas worst case complexity of binary search is 1. Okay. Now, what are its applications? Any application which requires searching. Okay, binary search is used in such kind of softwares which requires searching. For example, telephone directory, word dictionary, or you can use this binary search in like banking system. Suppose you want to search details of an account holder. Okay, then there are lakhs of account holder in a bank. Then you will directly apply binary search. Okay, to reduce number of comparisons. You will not apply linear search in case of searching account holder data in a bank. You have to apply binary search so as to reduce the number of comparisons, so that you will get the result faster. Okay, now see it's working. How to find element in this array. For this, again, this is array of 10 integers. Okay, and here item is the variable which will you search in this array. Okay, for our example, we will search this number 99, so item will point to 99. Okay, so item will be the variable which you will try to find out in this array. Okay. Another variable is required, which will point to the location of the element, and for this case we have taken LOC. Okay, and you have to find this LOC. We have it should be 8. Okay, we have to find the value of this LOC. It must be 8 after searching. Okay, and then another important variable mid. Okay, mid is an important variable in binary search because every time you have to find a new mid in this binary search. Okay, so we will declare another variable mid, and it will be calculated as beginning plus end by 2. Okay, and so beginning and end also must be declared. Beginning will always point to the beginning of the array, and end will always point to the end of the array. See, beginning and end will change throughout the execution of the program. Okay, sometimes beginning will become after half of this list, or sometime end can become before half of this list. Okay, so अगर आपको जो नंबर फाइंड आउट करना है वो अगर आपका मिड से एक्सीड करता है, ठीक है, तो आपकी बिगिनिंग 0 से लेके 0 से कहाँ चेंज हो जाएगी, 5 में. ठीक है, अगर आपको नंबर सर्च करना हो 33, तब आपका एंड कहाँ चेंज हो जाएगा, 4 से डायरेक्टली 3 तक. ठीक है, तो इस तरह से आपके बिगिनिंग और जो एंड वेरिएबल हैं दे विल चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. Okay, now see this declaration int item LOC set to -1. Okay, what does it mean? It means initially you assume that item is not in the list. Okay, and if item is not in the list, there will be no location for this element, so it is set to be negative. Okay, and beginning is 0, end is 9, and then mid element. So we have numbered this array now from A0, A1 up to A9. And now this is the code for binary search. Okay, first of all, you will calculate mid element. It will be equal to beginning plus end by 2. Okay, from here your loop will start. See, loop will start from beginning is less than equal to end. Okay, see ऐसा केस आता है कभी भी, ये क्यों लिखिए आपने स्टेटमेंट बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल टू एंड. अगर आपके पास इस लिस्ट में एलिमेंट ना हो तब ऐसा केस आएगा कि आपकी जो बिगिनिंग है वो एंड से एक्सीड करेगी. ठीक है, सुन रहे सभी या नहीं? हेलो, यस सर. यस सर. Yes, sir. देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ. बिगिनिंग कब एक्सीड करेगी एंड से. सपोज इस लिस्ट में आपने सर्च करना है 350. ठीक है, नहीं है लिस्ट में. फर्स्ट टाइम आप कंपेयर करेंगे 55 से,
ठीक है, तब आपके पास केस होगा 350 इज ग्रेटर देन 55, ठीक है। तो उस केस में आपकी जो प्रीवियस लिस्ट है 55 से पीछे तो एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। तो आप पीछे तो सर्च नहीं करेंगे, आपका जो न्यू बिगिनिंग होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 5th लोकेशन से, ठीक है। तब आप फिर से मिड फाइंड आउट करेंगे, 5 + 9 डिवाइड बाई 2, okay, that will be 7, okay. So now you will compare 350 with the 7th element 88, okay, and now again you will find that 350 is greater than this element 88, okay. So now since 350 is greater than 88, now you will not go behind this 88, your beginning variable will now again change to this location 8 beginning plus 1, okay. So after this क्या होगा देखो, इसके बाद 8 को पॉइंट करेगा आपका बिगिनिंग, है ना। तो फिर से आप नया मिड फाइंड आउट करेंगे, 8 + 9 17/2, और इस केस में क्या आएगा, मिड की वैल्यू 8, ठीक है। तो आप 8 से कंपेयर करेंगे 350 को, ठीक है। 350 फिर एक्सीड करेगा 8 से, है ना। तो मीन्स आप 99 के पीछे तो नहीं हो सकता कहीं भी 350, ठीक है। फिर से बिगिनिंग होगा, बिगिनिंग +1 बनेगा, तो उस केस में 9 बनेगा बिगिनिंग। आप फिर से न्यू मिड फाइंड आउट करेंगे, 9 + 9 18 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बनेगी मिड की, 9। अब आप इस देखो, इस 222 से फिर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। उस केस में भी 350 क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो अब 222 की लेफ्ट हैंड साइड को तो नहीं हो सकता एलिमेंट, ठीक है। तो आप फिर से बिगिनिंग को इंक्रीज करते हैं, बिगिनिंग +1 करके देखेंगे, अभी हम कोडिंग में ये सब देखेंगे, है ना, ठीक है। तो अब बिगिनिंग की वैल्यू क्या बनेगी बताओ, 9 + 1 क्या बन जाएगी, 10, ठीक है। इस केस में देखो, अगर बिगिनिंग आपकी एक्सीड करती है एंड से, ठीक है, तब आप मींस एलिमेंट आपका जो आपने एलिमेंट फाइंड आउट करना एरे में नहीं होगा कभी भी। समझाया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. है ना, ठीक है। ये केस आपका लेस नंबर राइट साइड को भी हो सकता है ना। सो आपने नंबर ऑफ फाइंड आउट करना है 4, ठीक है। इस लिस्ट में नहीं है। आप सबसे पहले 55 से कंपेयर करेंगे, ठीक है, नंबर लेस होगा। आप न्यू मिड फाइंड आउट करेंगे, वो होगा 33, ठीक है। 33 से भी 4 लेस है। आप न्यू मिड फाइंड आउट करेंगे, नंबर क्या आएगा, 22, ठीक है। फिर नंबर आएगा 11, और फिर आपको जो एंड है वो आपका रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, है ना। एंड आपका 0 तक पहुंच जाएगा उस केस में। तो एंड ऐसा केस आएगा जब 0 से भी लेस हो जाएगा उस केस में, तब भी बिगिनिंग लेस देन एंड नहीं रहेगा, तब भी आपका एलिमेंट लिस्ट में नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 केस होंगे जब आपके पास 3 केस बनेंगे, या तो नंबर लिस्ट में होगा ही नहीं, ठीक है, या फिर नंबर आपका लिस्ट में होगा तो वो मिड एलिमेंट होगा, ठीक है, या आपका नंबर जो होगा वो मिड के लेफ्ट साइड में होगा या फिर राइट साइड में होगा, ठीक है। So now see this coding. Now while beginning is less than equal to end. See first comparison, ठीक है। हमने सबसे पहले एक कंपैरिजन किसके लिए किया, लेफ्ट हैंड साइड के, कि अगर जो आपने सॉरी राइट हैंड साइड के लिए जो आपने आइटम सर्च करनी थी, जो आपने नंबर फाइंड आउट करना है, वो मिड एलिमेंट से ग्रेटर है या नहीं, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो आप बताओ क्या चेंजेस आने चाहिए, इफ आइटम इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, ठीक है। सपोज इस एरे में हम 99 का एग्जांपल है ना, 99 फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। उस केस में 99 इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड इज व्हाट, 55। सो what should be the instruction which we should execute now? The Tell me. beginning change is Beginning is हाँ, बिगिनिंग क्या बनेगा, 5. बिगिनिंग, okay, Mid or you plus can one. say +1. mid +1, okay. So see now you have set here beginning equal to mid +1, ठीक है। तो ये पहला केस हुआ, है ना, इसमें कोई ज्यादा वो बात नहीं, आपको सिर्फ अगर आइटम ग्रेटर है मिड से तो बिगिनिंग शुड बी सेट टू मिड +1। नाउ सेकंड केस, else if a of mid is less greater than item, मीन्स जो आपने आइटम फाइंड आउट करनी थी वो मिड से लेस है ना। इसको इस तरह से भी रीड करो, जो आइटम आपने फाइंड आउट करनी है वो मिड एलिमेंट से लेस है। अब बताओ इस केस में जो एलिमेंट होगा वो कहाँ होगा, आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अब क्या चेंज होना चाहिए, And equals to हाँ, mid. एंड शुड बी मिड -1, ठीक है, क्योंकि मिड से तो हमने कंपेयर करना ही है, ठीक है, ठीक Yes, है। sir. 55 से तो इसे हम एक माइनस करेंगे, मिड -1, इट शुड सेट टू मिड -1, ठीक है। तो ये सेकंड केस है। नो थर्ड केस, एल्स इफ ए ऑफ मिड इक्वल टू आइटम, तो अगर आपका जो नंबर है वो 55 है, ठीक है, जो नंबर है वो 55 है, जो आपने एक मिनट सर डिस्टरबेंस आ रही है, जो आपने नंबर था वो मिड है जो आपने फाइंड आउट करना है, उस केस में आप डायरेक्टली मिड फाइंड आउट कर लेंगे।
तो उस केस में आपको क्या करना है, जो पहले देखो एलओसी क्या सेट था, नेगेटिव हियर, एलओसी सेट टू -1। अगर कभी भी नंबर मीट नहीं होगा तब आपका ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा उस केस में, तो एलओसी कभी भी मीट नहीं बनेगा, है ना। तब आप लूप के बाहर जाओगे और आप प्रिंट करोगे इफ एलओसी इज नेगेटिव यू विल से आइटम इज नॉट फाउंड इन दिस लिस्ट, ओके। अदरवाइज यू विल प्रिंट location as meet element, location as meet, okay. So loc will set to meet, then you will print element found at location %d, and then you will come out of this loop break, okay. अगर देखो इनमें से कोई भी केस अगर ट्रू नहीं होता है ना, ठीक है सर, एक इनमें से एक केस ट्रू होगा, या तो एलिमेंट मीट होगा या फिर ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा, ठीक है। हमारे केस में 99 है तो ग्रेटर वाला केस होगा ट्रू, फर्स्ट केस, ठीक है। तो बिगिनिंग क्या बनेगा, मीट +1, ठीक है। तो बिगिनिंग यहाँ को पॉइंट करेगा 5 को, फिर आप, ठीक है। तो उस केस में आपको ये स्टेटमेंट पक्का लिखनी थी, यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट लिखी आपने, मीट इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंड बाय 2, ठीक है। इसी स्टेटमेंट के थ्रू आप क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट के थ्रू आप नया मीट फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर, है ना। ये जो आपकी मीट स्टेटमेंट थी वो आउटसाइड लूप थी, यहाँ पर मीट इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंड बाय 2, है ना। स्टार्टिंग में आपने मीट्स के साथ कंपेयर करना था, आपको इस मीट को बार बार चेंज करना है, तब आपको ये स्टेटमेंट कहाँ लिखनी पड़ेगी, व्हाइल लूप के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से नया मीट फाइंड आउट करेंगे, फिर से कंपैरिजन हो गए ये सारे, है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी इट्स वर्किंग, ओके, ठीक है। हम 99 वाला ही केस यहाँ पे करेंगे फिर से, ठीक है। देखो जब ये सारा प्रोग्राम रन होगा तो फर्स्ट टाइम मीट की वैल्यू क्या है, बिगिनिंग प्लस एंड बाय 2, okay, so it is 0 plus 9 by 2 which is equal to 4, okay. And now we will go to the statement while beginning is less than equal to end. सभी सुन पा रहे हैं नहीं? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो बिगिनिंग क्या है, मिड क्या है 4, ठीक है, और while beginning is less than equal to end, so ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि इनिशियली आपका बिगिनिंग क्या है 0 and end क्या है 9, so 0 is less than 9, this is true. So now you will go inside this loop, okay. So see 0 is less than equal to 9 true, and you will go to this statement if a of mid is less than item, okay. So ये वाला जो केस है A4 क्या है आपके पास 55, so 55 is less than 99, this is true, 99 जो आपने फाइंड आउट करना था वो ग्रेटर है A4 से, ठीक है। तो उस केस में ये वाले चेंज आएंगे सिर्फ, है ना, बाकी कोई कोड नहीं चलेगा, ना तो ये एल्स इफ चलेगा ना ये एल्स इफ चलेगा, ठीक है। सिर्फ ये इफ वाला ये बिगिनिंग इक्वल टू मीट +1 सेट होगा और इसका डायरेक्ट आप क्या करेंगे, न्यू मीट कैलकुलेट, ठीक है। सो सी beginning will be set to meet +1, see here beginning is set to meet +1, and now beginning will be 4 + 1, okay. इनिशियली पहले बिगिनिंग क्या था 0, ठीक है, आपने मिड +1 किया तो 4 + 1 5, तो यही होना चाहिए आपका न्यू बिगिनिंग अब, है ना, ठीक है, यहीं से पॉइंट होना चाहिए। तो देखो इस तरह से आपने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। आफ्टर दिस न्यू मिड बिगिनिंग प्लस एंड बाय 2, दिस हैज बीन कैलकुलेटेड हियर, ओके, ठीक है। मिड क्या है, आप नया मिड आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मिड आपका इन इस लिस्ट का मिड होगा आपका, है ना, 5 लोकेशन से 9 तक, ठीक है। तो देखो आपका बिगिनिंग 5 था, एंड क्या था 9, सो नया मिड आया 5 + 9 / 2 7, ठीक है। तो अब ये मिड है और यही मिड है एग्जैक्टली, है ना, 5 नंबर है, देखो यहाँ से 66 77 88 99 222, तो 5 नंबर तो मिड बनेगा 88, ठीक है। फिर से आप लूप के पास जाएंगे, फिर से बिगिनिंग ये कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। तो नो स्टिल 5 इज लेस देन इक्वल टू एंड ट्रू है, अभी भी ये जो बिगिनिंग है वो एंड से लेस है, ठीक है। फिर से सब कुछ चेक होगा अगेन, तो इस केस में भी फिर से जो 99 है इट इज ग्रेटर देन A7 क्या था 88, ठीक है। तो फिर से नया आपका जो बिगिनिंग है वो फिर से चेंज होगा। अब देखो अगर इस 88 से भी ग्रेटर है 99, तो बिगिनिंग इससे बिल्कुल आगे होनी चाहिए, इससे पीछे तो एलिमेंट नहीं हो सकता, है ना। सो बिगिनिंग विल बी सेट टू इक्वल टू मिड +1, तो मिड क्या था पहले 7, ठीक है, ये हमने 7 कैलकुलेट किया था, तो न्यू बिगिनिंग इज नाउ 8। सो आफ्टर दिस यू विल अगेन फाइंड न्यू मिड, ओके। सो 8 + 9 beginning plus end by 2 which equal to 8, okay. So after this we will go to again this while loop, है ना। तो फिर से यहाँ पे चेक करेंगे बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड ट्रू है, ठीक है। तो 8 जो है वो लेस देन 9 है, ठीक है, ट्रू है,
फिर से आप लूप के अंदर जाएंगे एंड फिर से पहली स्टेटमेंट चेक करेंगे। देखो इस केस में पहली स्टेटमेंट क्या है, इफ ए ऑफ मीट लेस देन आइटम। अब ये वाली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स है ना, क्योंकि आपका यही नंबर है जो आपने फाइंड आउट करना था 99। उस केस में फॉल्स होंगे, तब आप नेक्स्ट एल्स इफ चेक करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एल्स इफ में भी आपको ए ऑफ मीट इज ग्रेटर देन आइटम, ये भी फॉल्स है। ठीक है, ए ऑफ इट इज ग्रेटर देन आइटम, दिस इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, तब आप नेक्स्ट एल्स इफ चेक करेंगे, एल्स इफ ए ऑफ मीट डबल इक्वल टू आइटम। तो अब ये केस ट्रू है आपका, है ना, क्योंकि यही एलिमेंट था और आपने इसको फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर, ए ऑफ 8 इक्वल टू डबल इक्वल टू 99। ठीक है, तो लोकेशन कौन सी सेट होनी चाहिए, मिड। ठीक है, तो मिड क्या आपके पास 8, सो लोकेशन इज सेट टू मिड 8, है ना। देखो अगर ये ट्रू है तो लोकेशन क्या बन जाएगी, एलओसी सेट टू मिड, और मिड क्या कैलकुलेट किया था आपने 8 यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका मिड एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए उसके बाद ब्रेक है, तो आप व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद आपने प्रिंट करना था, प्रिंट हो चुका है पहले ना, एलिमेंट इज फाउंड एट लोकेशन परसेंटेज, और उसके बाद आप गेट सीएच लगा के प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। ठीक, समझ आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. देखो इसमें हमने एंड, ये वाला जो केस है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एंड इक्वल टू मिड माइनस 1, है ना, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट था वो हमेशा क्या था, ग्रेटर ही हमारा फाइंड हुआ इस केस में। ठीक है, जैसे सपोज अगर आपने 33 फाइंड आउट करना हो इस लिस्ट में, आपने मुझे बताते रहना है ना। ठीक है, 33 फाइंड आउट करना है इस लिस्ट में, सबसे पहले 55 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और जब ये लूप आपका, व्हाइल लूप आपका रन होगा, तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, देखो ये तो फॉल्स होगी, ए ऑफ मीट इज लेस देन आइटम। ए ऑफ मीट क्या था 55, आपने फाइंड आउट करना है 33। ओके, सो 55 इज लेस देन 33, तो ये फॉल्स होगा आपका। आप जाएंगे एल्स इफ के पास डायरेक्ट, है ना। इस केस में देखो ए ऑफ मीट इज ग्रेटर देन आइटम, ये ट्रू है। ए ऑफ मीट क्या है 55, आइटम आपने फाइंड आउट करनी थी 33, सो दिस इज ट्रू। सो दिस नाउ दिस एंड विल चेंज नाउ। ओके, एंड विल बी सेट टू मिड माइनस 1। ठीक है, तो एंड क्या था आपके पास 9, है ना। बताओ एंड की वैल्यू क्या बनेगी, 3. 3. है ना। ठीक है, अब आप डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो मिड इक्वल टू बिगनिंग प्लस एंड बाय 2, तो आपका बताओ न्यू मिड अब क्या बनेगा, बिगनिंग 0 रही आपकी। ठीक है, और एंड आपका 3 बन चुका है, तो 0 प्लस 3, 3/2, बताओ क्या आएगा, 1. 1 आएगा आपके पास। ठीक है, उस केस में देखो आपका जो मिड है अब क्या बना आपके पास 22, है ना। अब आपने ध्यान से देखना, जब आपके पास मिड आपके पास 22 था, तब आप फिर से लूप चलेगा। ठीक है, और बिगिनिंग 0 था, एंड 3 था, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है। अब आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देखो इफ ए ऑफ मिड इज लेस देन आइटम, ए ऑफ मिड क्या है 22 एंड 22 इज लेस देन 33। ठीक है, उस केस में क्या चेंज होगा, बिगिनिंग चेंज होगी फिर से। ठीक है, अब बताओ बिगिनिंग की वैल्यू क्या बनेगी, मिड प्लस 1, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से बताओ। 2. 1, 2. नहीं, हाँ 2 बनेगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मिड क्या था आपका रिसेंट बन चुका है 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1, अब बिगिनिंग क्या बनेगी 2। देखो यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, इस मिड के पास, तो नया मिड फिर से फाइंड आउट होगा। बिगिनिंग क्या बन गई है 2, और एंड आपका क्या था 3, है ना, एंड 3 था ना, Yes, sir. है ना। तो बिगिनिंग प्लस एंड 2 प्लस 3 5, 5/2। अब बताओ 5/2 तो क्या वैल्यू स्टोर होगी 2, 2. है ना। ठीक है, तो उस केस में देखो फिर से आप यहाँ पे जाएंगे लूप के पास, और बिगिनिंग क्या है आपका 2 और एंड था 3, 2 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है। फिर से केसेस एग्जीक्यूट होंगे, तो इस केस में देखो ये भी फॉल्स है ना, क्योंकि अब आप पहुंच चुके हैं एलिमेंट के पास, है ना। 33 आपने फाइंड आउट करना था, तो ए ऑफ मिड क्या है 33, तो ए ऑफ मिड इज लेस देन आइटम फॉल्स, ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन आइटम, दिस इज आल्सो फॉल्स। नाउ यू विल गो टू दिस स्टेटमेंट एल्स इफ, एंड इफ ए ऑफ मिड is double equal to item, so 33 is equal to 33, this is true, so we will set LOC equal to mid, and mid was 2, so location is found at mid location 2. so okay, so देखो इस तरह से आपका कभी बिगिनिंग चेंज होगा, कभी एंड वेरिएबल चेंज होगा। इस केस में आपका सिर्फ बिगिनिंग ही चेंज हुआ था, लेकिन जब आप बैक साइड देखो, जब आपने लेस एलिमेंट्स फाइंड आउट किया, तब आपका एक बार एंड चेंज हुआ, एक बार बिगिनिंग चेंज हुआ।
इस तरह से अगर आपके पास बहुत लार्ज एरे है, ठीक है, 1000 एलिमेंट्स का एरे है तो कई बार आपका बिगनिंग चेंज होगा, कई बार आपका एंड चेंज होगा, लेकिन एट मोस्ट जो नंबर ऑफ कंपेरिजन लगेंगे, मैक्सिमम कंपेरिजन कितने होंगे, log 2n, ठीक है। सो ये आपका बाइनरी सर्च था, समझ आ गया सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो यही कहा था आपने, है ना, बाइनरी सर्च पिछले लेक्चर्स में आपको समझ नहीं आया था, ठीक है। इसके बाद हम अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं देखनी है आपने, है ना, या आप खुद कर लेंगे अब, या प्रोग्राम भी देखना है So बाद में? अगर कर अगर लेंगे सर। बाइनरी सर्च में more than one elements ढूंढने हो तो जब मोर देन वन एलिमेंट ढूंढने हो उस केस में, ठीक है, उस केस में चलो उसका भी मैं आपको करवा दूंगा, है ना। वैसे आप ट्राई आपने नहीं किया था ट्राई, ये मैंने शायद आपको कहा था ये केस कि नहीं कहा था? से नहीं आया। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर कल करवाता हूँ इसको सभी को, है ना, ठीक है। उसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको मैं आपको कल Okay, करवाता हूँ, लेकिन है ना, फिलहाल अभी ये बताओ, इसका प्रोग्राम भी लिख आपको समझाना है अभी, या चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, 2D की तरफ? So next. नेक्स्ट करते हैं अब, है ना, क्योंकि आपको लॉजिक तो समझ आ गया है, ठीक है। आपने यही कोड लिखना है सिर्फ उसमें अपने कंपाइलर में, और ये रन हो जाएगा। सुनो, सर ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी? हाँ हाँ, ये मिल जाएगी, बस जैसे एरे कंप्लीट होगा मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सभी को, है ना, ओके ठीक सर। है। जैसे एरे यस कंप्लीट सर। होगा मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। टाइम बताना जरा, टाइम क्या होगी? 10:45। 45। ओके, ठीक है, चलो हम जल्दी से थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं 2D एरे की, है ना। अभी इतना टाइम तो नहीं रहा, फिर जल्दी से फिर कल इसको कैन करेंगे, ठीक है। स्लाइड शो, मनीष के पहना। मोदी भक्त बहुत है ना। ठीक है, मैंने इसको ठीक है क्लिक आउट कर दिया। कौन आता है पर्सन मोदी जी के नाम से, है किसी को पता नहीं सर, सभी क्लासेस सर में ढूंढ आता रहे है, अभी। चलेगा पता तो बता देना। यस सर, हमने माना है। ये सर जिंटे की दुश्मनी है सर बहुत बड़ी। चलो कोई बात नहीं, आप बता देना अगर चलेगा पता तो। चलो देखो, कंसंट्रेट करो यहाँ पे, है ना। 2D एरे है, ठीक है। व्हाट इज 2D एरे? A 2D array is defined as an array which requires 2 indices to represent an element, okay? या 2 डायमेंशन भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। आपका जो लीनियर एरे था उसमें आपने हर एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया था, सिंगल सबस्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। एंड इन केस ऑफ 2D array you will access every element with the help of 2 subscripts. First subscript will be row subscript and second subscript will be column subscript, okay. See, now let's understand it, ठीक है। आपका 1D एरे है, हर एक एलिमेंट को आपने कैसे एक्सेस किया। फर्स्ट एलिमेंट, इफ यू वांट टू एक्सेस 23, you will see with the help of single subscript. This is subscript a of 0, okay. You will access 23, then next element 45 you will access with next subscript 1, okay. So in this way you will access every element with single subscript, okay. This is subscript, okay. स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट, है ना। तो यहाँ पे सिंगल ही सबस्क्रिप्ट है, 0 1 2 3 4, so to access every element you need only single subscript. Now see case of 2D array. This is B array. B is an array which is 2-dimensional array. In this case, see its numbering. It has been numbered from 0 1 2 3 and then again 0 1 2 3, okay. See in case of linear array it was numbered from 0 to 7,
and it has been grouped to two groups. First group is from 230 to 78, see here, and second group is 89 to 40. Okay, so this is an example of two-dimensional array. Now, how do you access every element with the help of two subscripts? Okay, first group will be named as 0th group, and second group will be named as first group. Okay, so now if you want to access, if you want to access this 23, so how will you access now a b of 0 0? So this element belongs to group 0, and in group 0 it is 0th element. So you will say 0 element 0 0, that is 23. Now see 45. Okay, this belongs to group 0 and it is first in this group. Okay, so this element will be accessed by 0 1, which is equal to here it should be 45. Okay, this is wrongly typed, 45. Then next element B02, that is 32. Next element is B03, that is 78. Okay, so now you will move to the next group. Okay, so to access next element 89, this element belongs to first group and 0th location. Okay, so V10. So in this case, you can see every element will be accessed like this. Okay, 1 3. So see, in two-dimensional array, you have used two subscripts to access every element. These are two subscripts. This is first subscript 0, and this is again next subscript, second subscript. Okay, so you can say 2D array is also known as array of arrays. Okay, see, this is an array of 4 numbers. This is also an array of 4 numbers. Okay, and if you group these both arrays together, okay, you can then it will become a two-dimensional array, and you can say B is an array. B is an array of n, which is array of arrays. Okay, देखो ये एक array है जहाँ पर आपके पास टोटल 8 एलिमेंट्स हैं B के पास, और इस array में भी आपके पास 2 सब arrays हैं. ठीक है, पहला सब array है 4 एलिमेंट का, और दूसरा जो सब array है वो भी है 4 एलिमेंट का. ठीक है, इसलिए आपकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है, इट इज नोन एज array of arrays. ठीक है, अब देखो आप जो डिक्लेरेशन किस तरह से करते हैं. 1D एरे में डिक्लेरेशन किस तरह से की थी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाटा टाइप, then you write name of array, and then you size, then you give here dimension or subscript of the array. Okay, so for this array, this should be the declaration int a of 8. Okay, now in case of 2D array, how do you declare 2D array? Again, data type, name of 2D array, and then dimension 1 and dimension 2. Okay, read it at dimension. Okay, it should not be subscript. Okay, subscript will be used only when you try to access individual element. Here it should be dimension 1 and it should be dimension 2. Here it should be also dimension. Okay, dimension or size, you can say dimension or size. So यहाँ पर आपका dimension 1 क्या होगा? See, this is array. Okay, so here this should be declared at B24. Okay, because in this array, how many groups are there? 2 groups, 0 and 1. So it is written here under dimension 1, 2, and every group contains how many elements? 4 elements. 4 elements here, 4 elements here. Okay, so second dimension contains size of each sub array. Okay, so this is declaration of 2D array. Okay, now let us see another slide. What is the need of two-dimensional array? Okay, see the statement. Two-dimensional array provides the way to store data in the form of grids and tables. Okay, जब भी आपने डाटा 2 डायमेंशन में स्टोर करना हो, ठीक है, ग्रिड या टेबल की फॉर्म में, उस केस में आपका 2 डायमेंशन ही हेल्प करता है आपके पास. ठीक है, इसको समझने के लिए देखो, इसको समझते हैं. ठीक है, अब आपने तीन तरह से डिक्लेरेशन पढ़ी. आपने इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, सेकंड, आप एक एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, लीनियर एरे को, लीनियर एरे या 1 डायमेंशनल एरे, दोनों सेम चीज है. ठीक है, और थर्ड है आपके पास 2 डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, आपको कैसे लगाना पता कि आपको कौन सा, किस तरह का डाटा आपको रिक्वायर्ड है. ठीक है, आपको कब 2D डिक्लेयर करना है, कब 1D में डाटा डिक्लेयर करना है. ठीक है, या कब इंडिविजुअल एलिमेंट से काम चलेगा. ठीक है, एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ डाटा. ठीक है, जिस फॉर्म में आपका डाटा होगा उसी फॉर्म में आपको स्टोर करना होता है डाटा. जैसे कि सपोज आपने आपकी क्लास के किसी स्टूडेंट्स के मुझे ये डिटेल चाहिए, है ना, मुझे आपकी क्लास का रोल नंबर, किसी स्टूडेंट के रोल नंबर चाहिए, उसके मार्क्स चाहिए, एज चाहिए, उसकी फी कितनी है, उसके पिन कोड क्या है, एड्रेस जहाँ पर है,
मोबाइल नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, या कोई और डिपार्टमेंट आईडी सोर्स क्या है, ठीक है। मुझे अगर इस तरह का डाटा चाहिए, ठीक है, सी अगर इस तरह का डाटा है तो इनमें कोई रिलेशन नहीं आपस में, है ना, ठीक है, कोई एक सिमिलर ग्रुप नहीं बनाते कभी भी ये, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से इंडिविजुअल अलग से सेपरेट डिटेल्स है हर एक डाटा की, तब आप उसको सिंगल वेरिएबल से ही डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। आप इसके लिए एरे नहीं बना सकते कभी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के नाम से, ठीक है, कि स्टूडेंट की आपको अगर ये 8 चीजें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। उस केस में आपको इंडिविजुअल रोल नंबर स्टोर करना है, इंडिविजुअल मार्क्स स्टोर करने हैं, इस तरह से इंडिविजुअल एज स्टोर करने, सो ऑन, ठीक है। तब आप 8 वेरिएबल अलग से डिक्लेयर करोगे। नाउ सी अनदर केस, सपोज आई वांट टू स्टोर रोल नंबर ऑफ योर क्लास, ओके। सिर्फ 8 स्टूडेंट्स के मुझे रोल नंबर स्टोर करने हैं, तो 8 के 8 क्या है, रोल नंबर ही है अब, ठीक है। यहाँ पर ये 8 वेरिएबल्स क्या थे, डिफरेंट टाइप्स के थे, ठीक है, कि एक मार्क्स है, एक एज है, एक रोल नंबर है, तो डिफरेंट टाइप्स थी, तब आपको अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करने थे। अब सिमिलर ही प्रॉपर्टी है, मुझे सिर्फ रोल नंबर ही स्टोर करने हैं, ठीक है, 8 स्टूडेंट्स के। उस केस में आप क्या बना सकते हैं, लीनियर एरे, बाय डायमेंशनल एरे, ठीक है। समझ आया सभी को? हेलो, सुन रहे यस सभी? सर। यस Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो जैसे डाटा का नेचर हो उसी के अकॉर्डिंगली आपको डिक्लेरेशन करनी है। तो ये तो आपका देखो रोल नंबर है, सपोज आपकी क्लास के मैंने फर्स्ट 8 रोल नंबर स्टोर किए, 201, 202 और 208 तक, इस तरह से। तो सिमिलर नेचर था, तब आप लीनियर एरे करेंगे। अब देखो 2D एरे कब काम आएगा आपके पास, सो आपकी मुझे क्या करना है कि जो आपके फर्स्ट 3 इयर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट 3 इयर्स जैसे सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, इन सभी तीनों सेमेस्टर के मुझे फर्स्ट 4 रोल नंबर स्टोर करने हैं, ठीक है। उस केस में देखो नेचर तो सेम है, रोल नंबर ही स्टोर करने हैं, लेकिन अब डायमेंशन अलग है। मुझे पहले सेकंड सेमेस्टर के रोल नंबर स्टोर करने थे, फर्स्ट 4 रोल नंबर, फिर फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट 4 रोल नंबर स्टोर करने हैं, और उसके बाद सिक्स सेमेस्टर के फर्स्ट 4 रोल नंबर स्टोर करने हैं। तो अब उस केस में आपके 2 डायमेंशनल एरे काम आएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से आपकी डेक्लेरेशन होगी, ठीक है। तो देखो आपका जो पहला जो ग्रुप है, ठीक है, 0th ग्रुप है, सपोज ये आपको किसको डिनोट करता है, आपका सेकंड सेमेस्टर को, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट 4 नंबर मैंने स्टोर किए, 201, 202, 203 और 204, ठीक है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिर, है ना, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट जो आपका सेमेस्टर था वो कौन सा था, फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। तो जब आप फोर्थ सेमेस्टर का डाटा है, CSE फोर्थ का मुझे डाटा चाहिए था, फर्स्ट 4 नंबर, तो उसको मैंने डिनोट किया फर्स्ट सबस्क्रिप्ट से, है ना, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट देखो ये जो 3 है, ये किसको डिनोट करेगा, सेमेस्टर्स को, और ये 4 किसको डिनोट करेगा, रोल नंबर्स को। 3 सेमेस्टर हैं, ठीक है, और तीनों सेमेस्टर के अंदर 4 रोल नंबर आपने स्टोर करने थे। तो 0 सेमेस्टर मींस सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स मींस फोर्थ सेमेस्टर, और सेकंड इंडेक्स मीन सिक्स सेमेस्टर। देखो अब डाटा का नेचर इस तरह से था कि आपको सेमेस्टर भी आइडेंटिफाई करने थे और रोल नंबर अलग से, तब आप 2D एरे यूज करेंगे, समझ आया, है ना। अब देखो ये आपका 2D एरे है। आप इसका अब मुझे अलग से एक नेक्स्ट केस बनाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना था, आपके पास 5 ब्रांचेज हैं UIT में, है ना। एक ब्रांच है CSE, IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और सिविल। मुझे 5 ब्रांचेस के और 4 ईयर्स के, ठीक है, सभी के 4 फर्स्ट 4 रोल नंबर स्टोर करने थे। तो उस केस में आपका कौन सा एरे काम आएगा, 3D एरे, ठीक है। और देखो जो पहला इंडेक्स है 5, ये किसको डिनोट करेगा, 5 ब्रांचेस, एंड दिस 4 विल डिनोट 4 इयर्स इन एवरी ब्रांच, एंड देन दिस 4 विल डिनोट फर्स्ट 4 रोल नंबर ऑफ एवरी ईयर, ओके। सो सी दिस, इस तरह से। अगर आपके पास अब देखो नेक्स्ट केस क्या है, तो मुझे क्या करना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 10 कॉलेजेस हैं, ठीक है, हर एक कॉलेज में 5 ब्रांचेस हैं, और 5 ब्रांचेस में 4 ईयर्स हैं हर एक ब्रांच में, और मुझे अब उन चारों ईयर्स में से फर्स्ट 4 नंबर स्टोर करने हैं, ठीक है। तब आपका कौन सा एरे काम आएगा, 4D एरे, ठीक है। इस तरह से जिस तरह का आपका डाटा है, जितने डायमेंशन आपको चाहिए, उस तरह से आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है। यहाँ पर 3D एरे है, ये 4D एरे है। इस तरह से आप ND एरे तक बना सकते हैं जितने आपको डायमेंशन चाहिए, ठीक है। तो शायद आपको समझ आ गया हो इसकी नीड क्या है 2D एरे की, इस तरह से आया समझ सभी को? यस सर। यस सर। अब इसकी, ठीक है, अब देखो इसकी विजुअल परसेप्शन, ठीक है। एक्चुअल में जब भी आप ये डाटा इस तरह से रीड करते हो, आप किस तरह से इसको विजुअलाइज करते हो, इस तरह से। जब ये जैसे आपके यहाँ पे टाइम टेबल बना, ठीक है, आप ये जूम करोगे, ये जो 0th रो है, ठीक है, ये किसके लिए थी आपके पास, सेकंड सेमेस्टर के लिए। और ये जो 0th रोल नंबर है, फर्स्ट रोल नंबर है आपका सेकंड सेमेस्टर का, ये 1 जो है आपका सेकंड रोल नंबर है सेकंड सेमेस्टर का, इस तरह से, है ना। तो जो आपकी फर्स्ट रो है वो आपकी सपोज सेकंड सेमेस्टर के लिए है, जो आपकी सेकंड रो है वो फोर्थ सेमेस्टर के लिए है,
और थर्ड रो है जो वो 6 सेमेस्टर की है। आप विजुअलाइज इस तरह से करते हैं, लेकिन एक्चुअल में डाटा देखो कभी भी कंप्यूटर में इस तरह से स्टोर नहीं होगा, क्योंकि एरे की क्या प्रॉपर्टी है, कंटिन्यूअस नेचर। तो आपको जो डाटा है वो इस सीक्वेंस में ही स्टोर होगा। देखो ये आपका कंटिन्यूअस नेचर है आपका डाटा का, कि जैसे आपका 204 यहाँ पर आप पहुंचते हो तो नेक्स्ट एलिमेंट इसके इमीडिएट बाद ही स्टोर होगा यहाँ पर 401। तो इस तरह से डाटा स्टोर होगा 402, 403, 404 और नेक्स्ट एलिमेंट एक बार वैसे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो अगर आप इनके इस तरह से एक्सेस करते थे, अगर टेबल की फॉर्म में डाटा है तो फर्स्ट एलिमेंट से 201 है, ये क्या होगा, रोल नंबर ऑफ 00, 202 है, ठीक है, तो 0 थ्रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इस तरह से 203 कहाँ पर आपका 0 थ्रो एंड सेकंड कॉलम, 204 कहाँ पर 0 थ्रो और थर्ड कॉलम। तो इस तरह से विजुलाइज किया आपने। इस तरह से देखो हर एक एलिमेंट को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसी रीजन की वजह से एरे इज आल्सो नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है, देखो एरे की आपकी 3 डेफिनेशन होगी। पहली क्या थी, इन 2D एरे you use 2 dimension to access every element. Second was 2D array is also known as array of arrays, and third is 2D array is also known as a matrix. Okay, तो ये 3 आपकी डेफिनेशन बनी एरे की। ठीक है, अब देखो ये मैंने कहा ये सारा का सारा सीक्वेंसली होगा डाटा स्टोर, तब आप इनके एड्रेसेस देखेंगे। सपोज आपका बेस एड्रेस है 2D एरे का 2002। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ पर स्टोर होगा, 2004 पे, इस तरह 206 पे, 208 पे, सो इन दिस वे। ठीक है, तब आपका देखो विजुलाइज तो आप टेबल की तरह करोगे, लेकिन कंपाइलर जब इसको स्टोर करेगा कहीं भी मेमोरी में, तब आपको लीनियर एरे की तरह ही स्टोर करता है एक, है ना। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या थी, 2D एरे इज एन एरे ऑफ एरेज। ठीक है, तो ये एरे बना, लीनियर एरे ही होता है 2D एरे भी, लेकिन उस एरे के अंदर बहुत सारे सब एरेज हैं। जैसे ये आपका लीनियर एरे है, रोल यहाँ पे एरे है, और यहाँ पे तीन और एरे हैं इसके अंदर, है ना ये। ठीक है, तो ये इसकी नीड है 2 डायमेंशनल एरे की। ठीक है, टाइम अभी ओवर चुका है ना, बाकी हम कल करते हैं इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। ओके Yes, sir. ओके, सो बाय Bye, sir. बाय, टेक केयर। Bye.